हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज योर पीरियोट्रॉपी। देखो, पीरियोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन है वेयर वन जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइप, जहां पर एक ही जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटाइप्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंडीशन को हम बोलते हैं वियर्सट्राम पीरियोट्रॉपी। इसमें एग्जांपल जो हमारे पास है, द एग्जांपल इज योर दैट इज सिकल सेल एनीमिया। All of you know that sickle cell anemia is recessive RBCs related problem। ये प्रॉब्लम जो है RBCs से रिलेटेड है। एक्चुअली आप देखो तो RBCs का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन उसका क्या है, इन to carry oxygen, it helps in the transportation of gases, but in this case that is in term of pleiotropy, the shape of the RBCs changes, the structure of hemoglobin changes. As a result, the oxygen carrying capacity of the hemoglobin are reduced. So, sickle cell anemia जो है, it is a example of pleiotropy where the structure of hemoglobin and the shape of RBCs changes, due to which the oxygen carrying capacity of RBCs decreases. As a result, the person feels fatigue. Now, we talk about sickle cell anemia. So, sickle cell anemia जो है, what it is? First point, it is RBCs related disorder. So this disorder is related to, that is the RBCs. अगर हम बात करें तो it is, that is sickle cell anemia is recessive autosomal disorder. So RBC is related problem है, so it is a RBC related problem. ये है recessive autosomal disorder, means it is not due to that is sex chromosome, but it is due to autosomes. And when you use term recessive, all of you know that recessive which do not express itself in F1 generation. So it is a recessive autosomal disorder. Here we also see that recessive means this sickle cell anemia or the genes responsible for sickle cell anemia express themselves in homozygous condition. उसे हम बोलते हैं use term that is recessive, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है सिर्फ homozygous condition में ही। So ये recessive autosomal disorder है। Okay, so it is a recessive autosomal disorder and it is caused by point mutation. So it is caused by point mutation. So mutation of the study क्या होगा? Mutation are the certain changes which takes place in the structure or the number of the chromosomes. So it occurs due to point mutation. A small region of the portion undergoes a certain changes. Use term point mutation यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक सीक्वेंस की, डीएनए सीक्वेंस की, इट कैरीज सर्टेन जेनेटिक कोड्स एंड थोड़ी बहुत जेनेटिक कोड में वेरिएशन की वजह से फिनोटाइप में जो है दैट इज वेरिएशन आती है, उसे हम बोलेंगे दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझ जाओगे व्हाट इट मीन। सो इट इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। सो फर्स्ट इज योर इट इज RBCs related problem. दूसरा इट इज रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। एंड व्हाट इट मीन, अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली इसको स्टडी करने से पहले हमें यह स्टडी करना पड़ेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। इफ यू टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है that is HB, hemoglobin consists of that is 4 polypeptide chain, that is 2 alpha chain and 2 beta chains. So अगर if you talk about hemoglobin, तो hemoglobin की बात करें तो what it is made up of? It is made up of alpha chain and beta chain. So it is made up of that is 2 alpha chain and 2 beta chain.
ठीक है। सो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन एंड इन केस ऑफ दैट इज सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये है क्या मैंने बोला, इट इज दैट इज आरबीसी रिलेटेड प्रॉब्लम और कैसे अराइज होती है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। सो हीमोग्लोबिन को आपको बोलना है कि ये बना है 4 चेन का, दैट इज 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। दिस सिकल सेल एनीमिया अराइजेस ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन ऑन बीटा चेन at position 6. So इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल if beta both बीटा चेन की बात करें तो ये पॉइंट म्यूटेशन कहां पर होता है, इट इज caused by point या इट इज caused due to point mutation at position 6 of beta polypeptide chain. Okay, now if we talk about, let this is the polypeptide chain, and we have number of amino acids here, 1 2 3 4 5 एंड मैंने बोला कि सिकल सेल एनीमिया कैसे रह जा रहा है, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन एट पोजीशन 6 ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर मैं बात करूं नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, सो इन केस ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, here we represent normal hemoglobin as HbN and sickle cell as HbS. So in terms of normal hemoglobin at position 6 there is glutamic acid. क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामिक एसिड। सो आपको बोलना है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन की 6 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इन केस ऑफ सिकल सेल दैट इज हीमोग्लोबिन, दिस ग्लूटामिक एसिड is replaced by valine. So when this change takes place, this change takes place at position 6. Where, so ये आपको याद रखना important है, we have other in this position we have different types of amino acid too, लेकिन हमें ये नंबर याद रखना है कि क्योंकि पोजीशन 6 पर ग्लूटामिक एसिड में वेरिएशन आने की वजह से या ग्लूटामिक एसिड की रिप्लेसमेंट किससे, वैलिन की वजह से ही दैट इज ये सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम अराइज हो रही है। सो मैंने कहा कि इट इज काज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन, एंड वेयर दिस पॉइंट म्यूटेशन टेक्स प्लेस, द पॉइंट म्यूटेशन टेक्स प्लेस एट कार्बन 6 ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन वेयर द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। सो याद रखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो 6 पोजीशन पर है वो है ग्लूटामिक एसिड, क्या ऑपोजिट है, ग्लूटामिक एसिड। एंड इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। सो ड्यू टू दिस म्यूटेशन, दिस ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन व्हिच टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, पूरे सीक्वेंस में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक अमीनो एसिड के वेरिएशन की वजह से ये जो है डिजीज अराइज हो रही है, सिकल सेल एनीमिया कंडीशन अराइज हो रही है, दैट्स व्हाई यूज्ड टू, इसे हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। गॉट इट? सो आरबीसी रिलेटेड प्रॉब्लम, रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये, कॉज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन एट कार्बन 6 ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। मैं फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वेयर द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। नाउ व्हेन द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, देन उसके बाद होगा क्या? What are the effects produced by this valine? Now we talk about the gene responsible for that is normal hemoglobin is represented by HbN,
and which is responsible for sickle cell anemia is HbS. And all of you know that they are always present in pair males. Either we have HbN, either HbS, yes, we close it now. That is HbN. So this is the genotype for normal. Okay. Second, HbN and one responsible for HbS. अब यहाँ पर एक जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, एक सिकल सेल के लिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि सिकल सेल इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब वो हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करेगा। इट मींस यहाँ पर दीज आर द कैरियर्स, हम बोलेंगे। एंड थर्ड इज HbS, and this is a person suffering from sickle cell anemia. Alright, so we have these three types of genotype, that is HbN for normal hemoglobin, HbN, HbS इसे हम बोलेंगे carrier, sickle cell carrier, but the person appears to be normal. Now HbS and HbS की बात करें तो sickle cell anemia की बात, that is the person suffering from sickle cell anemia. Now अब ये sickle cell anemia की वजह से होगा क्या, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होगा क्या? तो सबसे पहले हम बात करें तो शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस, इफेक्ट क्या होंगे इसके? तो सबसे पहला इफेक्ट होगा शेप ऑफ आरबीसीज चेंजेस, श्रिंक हो जाएगा एंड इट बिकेम व्हाट? सिकल शेप्ड। ओके, तो शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस एंड इट बिकेम सिकल शेप। दूसरा अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंजेस, वो कैसे? अभी मैंने बोला कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बन दैट एट पोजीशन 6 पर। सो इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन द पॉलीपेप्टाइड चेन हैज ग्लूटामिक एसिड एट कार्बन नंबर 6, बट सिकल सेल एनीमिया में वो चेंज है, बैलेंस है। सो इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज डिक्रीजेस। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू विच द पर्सन फील फैटिग। Okay, so what happened due to this sickle cell anemia? Shape of the RBC changes and became sickle shape like this. उसके बाद structure of hemoglobin changes where the glutamic acid is replaced by valine, and third one is that is oxygen carrying capacity of hemoglobin decreases or reduced due to which the person feel fatigue. मतलब ऐसे लोग जब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, उनका रीजन नहीं है कि ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर एनर्जी उन्हें नहीं मिल पाएगी, तो जिसकी वजह से थोड़ा काम करने पर वो ज्यादा थकान महसूस करेंगे। सो नाउ वी टॉक अबाउट नॉर्मल HbN मैंने बोला दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सो पर्सन दे आर नॉर्मल, दे आर हीमोग्लोबिन आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। सो हीमोग्लोबिन जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। और टॉक अबाउट HbN एंड HbS की बात करते हैं तो ये कैरियर है। इन ह्यूमन बीइंग के अंदर हीमोग्लोबिन जो है कुछ they carry gene for normal hemoglobin and some for sickle cell anemia. Means in some cases they have glutamic acid, in some cases they have valine, but ये जो है they can survive, they are carrier and survive. And one of the most important thing is they are prone to they are resistant to malaria. तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है इन द सेंस HbN HbS नॉर्मल ह्यूमन बीइंग
जिनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो इनमें मलेरिया पैरासाइट है तो यूज्ड प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो वो इसे उन्हें अफेक्ट कर लेगा एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। बट अगर हम कैरियर की बात करें सो इन दिस कंडीशन प्लाज्मोडियम इज नॉट एबल टू सर्वाइव एंड एज अ रिजल्ट दीज पर्संस आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। तो ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। थर्ड वन, और हम बात करें इसकी HbS that is sickle cell anemia, if all the hemoglobins are contain valine instead of glutamic acid, then the person cannot, we have said the person don't survive. Got it? So we have three types of genotype: HbN, HbS, HbN, that is normal hemoglobin. HbN, HbS, these are the carrier. These can survive but with abnormalities, but these are resistant to malaria. Third one is HbS, HbS, the person suffering from sickle cell anemia in this case, all of the that is hemoglobin, the structure of the hemoglobin changes. As a result, these do not, all these persons do not survive. Now next we study the inheritance pattern. Means अगर फॉर एग्जाम्पल मदर जो है कैरियर है, फादर जो है नॉर्मल है, या वी यूज्ड टर्म मदर जो है सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रही है और फादर जो है वो क्या है, दे आर नॉर्मल। सो इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब पेरेंट्स के अंदर जीनोटाइप क्या है रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन एंड क्या इनहेरिटेंस पैटर्न जो है क्या कंडीशन ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी, उसके लिए आपको ये जीनोटाइप याद रखना है। नॉर्मल वी हैव HbN, HbN, carrier we have HbN, HbS, and sickle cell anemia we have HbS and HbS. So हम स्टडी करने जा रहे हैं that is your inheritance pattern. So inheritance pattern. So इसमें मैं एग्जांपल लूंगा। For example, if a man having normal hemoglobin, so male की बात कर रहा हूं, male having normal hemoglobin, that is, जब मैंने बात की नॉर्मल तो जीनोटाइप इज दिस, that is HbN, HbN. If married to a female having that is या कैरियर फीमेल, अगर नॉर्मल मेल जो है वो मैरिज शादी कर रहा है किसके साथ, कैरियर फीमेल के साथ, सो कैरियर फीमेल के लिए व्हाट इज द जीनोटाइप, that is HbN, HbS. Then what is the inheritance pattern in the offspring? So if you cross it, what we get, that is HbN, HB. So these are the parents. ठीक है, HbN, HbN. HbN, HbS. Now HbN, HbN, and HbN, HbS. Now this one normal, HbN and HbN is normal. HbN, HbS is carrier, and these are what? These are offsprings. Okay, HbN and HbN again normal, so HbN, HbS again carrier. So अगर हम देखें तो HbN and this HbN, HbN they are normal. They have normal hemoglobin. अगर हम इनकी बात करें तो these two are carriers. So we can say that what is the probability, अगर हम देखें तो 50% offspring जो है normal and 50% they are carrier. So this is the inheritance pattern in case of sickle cell anemia. If we have given क्वेश्चन इस तरह से पूछ जाता है कि अगर मेल जो है वो कैरियर है या फीमेल भी कैरियर है, then what is the probability in case of offsprings? What is the inheritance pattern? तो उसके लिए आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए कि कैरियर के लिए क्या है या दैट इज नॉर्मल के लिए क्या है
लेट्स एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मदर जो है सफर कर रही है, मदर सफरिंग फ्रॉम, या वी कैन से दैट बोथ मदर एंड फादर आर कैरियर, both mother and father are carrier. So what is the genotype for carrier? We have HBN, HBN. So mother, and here we represent female parent. So these are the parents. मैंने बोला दोनों के दोनों carrier हैं, means genotype is this. So HBN, HBS. Here again HBN, HBS. So both the parents are carrier. Then what is the probability or genotype of the offspring? So we have HBN. So HBN, 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 HB, HBS, HB, and this way HBS, HBS. So these are the offsprings. Now what is the probability now here? अगर हम देखें तो HBN, HBN इसकी मैं बात करूंगी नॉर्मल, HBN, 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 HBS, not N. This is S. So this is carrier, HBS, HBN carrier, and HBS, HBS, that is sickle cell anemia. So these are normal. इनकी बात करें, carrier, this one suffering from sickle cell anemia. So probability 25%, 50%, and 25%. So this is all what you have, that is pleiotropy and inheritance pattern in terms of pleiotropy. So it's all good for today. Thank you.